Good morning, guys. Today I will start new second chapter of statistics, that is collection of data. In the plural sense, statistics means the data or quantitative information capable of some meaningful conclusion. In this chapter, we will read source of data, second, method of collecting data, because there are many source of data and many methods for collecting of data. First, we will start about source of data. There are two sources of collection of data. One is primary source and second is secondary source. Question is, what is primary source? If we collect the data first time, if we collect the data first time, then it is called primary source. We can say, in other words, primary source of data implies collection of data from its source of origin. It offers you first-hand quantitative information relating to your statistical study. इसका मतलब यह है कि यदि हम कोई भी डाटा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, उस ऑब्जेक्ट को डिसाइड के अकॉर्डिंग यदि हम डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. Primary source of data implies collection of data from its source of origin. It offers you first-hand quantitative information relating to your statistical study. It means you or your team of investigators are contacting the respondent and obtaining the desired quantitative information on per capita expenses on different household in your town. It is called the collection of first source of primary data. What about secondary data? Secondary data implies collection of data from the agencies or institutions which already happens to have collected the data through statistical surveys. It does not offer you first-hand information relating to your statistical study. You are to rely on the information which is already existing. It means कि सेकेंडरी डाटा सोर्स के अकॉर्डिंग हम पहले से किसी व्यक्ति ने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, और उस इंफॉर्मेशन को ही यदि हम हमारे ऑब्जेक्ट के लिए काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. यहाँ अब यदि हम इसके डिफरेंस की बात करें
तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा. Primary source of collecting data offers you primary data, and secondary source offers you secondary data. Now let us clarify the difference. Primary data is collected by the investigator for his own purpose for first time. From beginning to end are collected primary data. यानी जो भी व्यक्ति वो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसके संबंध में पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन ने कोई डाटा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कलेक्ट नहीं किया है, और आप शुरू से आखिर तक खुद उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन. ये जो भी सोर्स है आपका, उस सोर्स के बिगिनिंग से आप कलेक्ट करते हैं. प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल. ये ओरिजिनल होता है, फर्स्ट हैंड होता है, पहली बार कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड ओरिजिनल. द कंसर्न इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन हु कलेक्ट दीज इंफॉर्मेशन. जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर, और वो इसे पहली बार कलेक्ट करता है. द प्राइमरी डाटा आर देयरफॉर ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कहा जाए कि यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द सोशो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ दोज स्टूडेंट इन योर क्लास हु सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन इन देयर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. यानी 11th में आपके स्कूल में कितने व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन पास हुए, इसकी यदि आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पॉकेट अलाउंस, देयर फैमिली इनकम, देयर एजुकेशन स्टेटस, देयर फैमिली मेंबर, एंड लाइक दैट. This information, if you collected from one to one, that it is called primary data. Now, principal difference between primary and secondary data. First difference is originality. Primary data are original because these are collected by the investigator from the source of their origin. Against secondary data already existence and therefore are not original. यानी जो पहले से किसी ने सर्वे किया है, आप उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने कंक्लूजन निकाल लेते हैं. सेकेंड, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव. Primary data are always related to specific objective of the investigator. Primary data always related to specific objective. These data therefore do not need any adjustment for concerned study. यानी इन पहले से की हुई स्टडी के डेटा को इसके लिए काम में नहीं लिया जा सकता. On the other hand, secondary data have already been collected for someone other people. यानी other people के लिए, किसी और के लिए वो डाटा इकट्ठा किया था. Therefore, these data need to be adjusted to suit the objective of study in hand. और इस डाटा को आप अपनी स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं. The basic difference, you can say, if we are collecting data from its origin, for first time it is primary data. If we are using data which have already been collected by somebody else, is called secondary data. And third, the cost of collection.
कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मीन्स प्राइमरी डेटा कॉस्टलियर होता है, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेटर को पहली बार उसे कलेक्ट करना है, वो हर व्यक्ति के पास जाएगा और इंफॉर्मेशन लेगा। जबकि सेकेंडरी डाटा कॉस्टलियर कम होता है, क्योंकि जिसने सर्वे किया है ऑलरेडी सर्वे है और उस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कम पेमेंट या कम पैसा देना पड़ेगा। We can say in another word, primary data are costly in terms of time, money and efforts involved them. The secondary data. This is because primary data are collected for first time from their source of origin, and secondary data are simply collected from the published or unpublished report. According, these are much less expensive. Now, how basic data is collected? तो फर्स्ट सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा में आपको बता दिया मैंने प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मोड ऑफ डाटा कलेक्शन। देयर आर three major well-known method of collecting primary data. We are talking here only for primary data because the secondary data is already have been collected by someone. So this method is used only for primary data. First, that is called personal interview. Personal interview can be classified in three methods: direct personal interview, indirect oral investigation, and information from local source or correspondence. Second method is information through questionnaires and schedules. इसमें दो मेथड है, मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे और एन्यूमरेटेड मेथड, एंड थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन मेथड. फर्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू. इसमें पहला था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. The direct personal investigation is the method by which data is personally collected by the investigator from the respondent. In other words, the investigator establishes direct relation with the person from whom the information is to be obtained. The success of this method, however, required that the investigator should be very vigilant, efficient, impartial and tolerant. यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो उस व्यक्ति से डायरेक्ट कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, जिससे आपको उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है. और इस मेथड की सक्सेस तभी हो सकती है जबकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेलीगेंट हो, एफिशिएंट हो, इम्पार्शियल हो और टोलरेंट हो. क्योंकि कई बार आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे सामने वाला व्यक्ति इरिटेट भी हो सकता है, तो यू मस्ट बी टोलरेंट. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की सूटेबिलिटी, यानी इन विच कंडीशन दिस मेथड विल बी इफेक्टिव. तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू suitability. First, the field of investigation is limited, not very large. यानी आपका जो इन्वेस्टिगेशन वाला एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है. सेकेंड, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड. यानी आपको जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो बिना ओरिजिनल डाटा के आपको
अपने ऑब्जेक्ट में सक्सेस नहीं दे सकता, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूजफुल है। थर्ड, द इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी की जानकारी दूसरों को नहीं हो तो भी इस मेथड को यूज किया जा सकता है। फोर्थ, एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। यानी आपको जो डाटा रिक्वायर्ड है उसको वो रैंडमली न होकर 100% उसकी एक्यूरेसी आपको चाहिए। और लास्ट, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड, यानी जब आपको इस मेथड में आपको पर्सनल व्यक्ति से कांटेक्ट करना जरूरी हो, तो इन 5 कंडीशन में वी कैन यूज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। पर्सनल इंटरव्यू का सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। Indirect oral investigation is the method in which by information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed. It is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information. These other person are known as witnesses. यानी इस मेथड में आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से या उस व्यक्ति से के रिलेटिव से भी वो इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस मेथड द डाटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर may be collected to their employer rather than the worker themselves. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको किसी फैक्ट्री के वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी करनी है तो आप सभी वर्कर से बात न करके और उसके एम्प्लॉयर मालिक से बात करके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल method. Again, in which case this method is suitable? First, the field of investigation is relatively large. यानी पहले मेथड से पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा बड़ा फील्ड हो आपका, यानी उससे ज़्यादा आदमियों से आपको अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो यू कैन यूज दिस मेथड। Second, it is not possible to have direct contact with concerned respondent. जब उन व्यक्तियों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। थर्ड, द कंसर्न रेस्पोंडेंट आर नॉट कैपेबल टू गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। यानी मान लीजिए वो इंफॉर्मेशन ऐसी है, ऐसे व्यक्तियों से रिलेटेड है जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो जानता नहीं है या वो अनपढ़ है, तो आप फिर इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव द इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक लेमैन उस इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकता, तो आप यू कैन यूज दिस मेथड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट, in case of direct personal investigation the investor established direct contact with the respondent. यानी इसमें इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। ऑन अदर हैंड, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन is obtained by the
contacting other than those about whom information is sought. यानी हम उन व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो उससे रिलेटेड व्यक्ति है. Second, personal investigation is generally possible when the field of investigation is small. जब छोटा फील्ड हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं. Indirect oral investigation is generally preferred when the field of investigation is relatively large. तो हम सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं, ओरल इन्वेस्टिगेशन. थर्ड, in the direct personal investigation, the investigator must be well versed in the language and culture habit of the respondent. यानी जिस व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति की कल्चर, उस व्यक्ति की लैंग्वेज, उस व्यक्ति की बोलचाल, भाषा आदि सब की जानकारी इन्वेस्टिगेटर को होनी चाहिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में. अदरवाइज अगर इन्वेस्टिगेटर इन चीज़ों को नहीं जानेगा तो हो सकता है कि रेस्पोंडेंट क्या जवाब दे रहा है और इन्वेस्टिगेटर उसका क्या मीनिंग निकाल रहा है. बट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि आप एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत. डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन द इनडायरेक्ट method. Now third, information from local source or correspondence. Under this method, the investigator appoints local person or correspondent at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. यानी इन्वेस्टिगेटर हर एरिया में एक लोकल पर्सन या लोकल कोरस्पोंडेंट को अपॉइंट कर देता है. वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर को वो सब इंफॉर्मेशन दे देते हैं. इन विच कंडीशन दिस मेथड इज सूटेबल. फर्स्ट, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड. यदि आपको हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद लगातार इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं. द एरिया इज वेरी लार्ज. इन्वेस्टिगेटर का एरिया बहुत लार्ज है तो अकेला व्यक्ति उस एरिया को कवर नहीं कर सकता, तो टुकड़ों में डिफरेंट व्यक्तियों को अपॉइंट करके उसको बांट सकता है. दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी, etc. अमूमन इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी जर्नल या मैगजीन, रेडियो और टीवी आदि के काम में आती है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप देखते हैं इलेक्शन में सर्वे आता है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें. तो ऐसी कंडीशन में हर स्टेट में और कुछ पर्टिकुलर प्लेस पर वो लोग अपने लोकल कोरस्पोंडेंट अपॉइंट कर देते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उन सबको मर्ज किए करके और कंक्लूजन निकाल लेते हैं. एंड लास्ट वन, ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. यानी जहां पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाली इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं. तो इन 4 केसेस दिस मेथड इज सूटेबल. I think this is the first method. We will discuss second method in next period. Thank you very much and have a nice day.